हेलो हरेंद्र सर। यस सर। कैन वी स्टार्ट नाउ सर? हमारे Yes. करीबन 81 स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं। धीरे धीरे से वो एडमिट हो रहे हैं। हम प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। जी સર। ઓકે સર, આર યુ અને રેડી? સર આટલો બધો વોઇસ આવી રહ્યો છે કે સંભળાતું નથી પૂરું. પેલો બહારનો બેકગ્રાઉન્ડ ગણપતિ બાપા મોરિયા ચાલે છે. આટલો બધો બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ આવે છે સર કે આપણો વોઇસ નહીં સંભળાતો પૂરો. આ ઓપ્શન નથી તમારા. હવે સાંભળી શકો છો? મે આઈ ઓડિબલ? यस सर। ओके, तो हरेंद्र सर मैं शुरुआत कर रहा हूँ अभी यहाँ से, फिर बाद में भावेश सर लेंगे बीच में, फिर आप शुरू कर देना सर। जी सर। ओके। તમારામાં એ ઓપ્શન જ નથી. દરેક વિદ્યાર્થીને સૂચના છે કે તમારો માઇક્રોફોન મ્યુટ અવસ્થામાં રાખજો પ્લીઝ. કોઈ માઇક્રોફોન ઓપન નહીં કરે. જ્યારે તમને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે સર તરફથી ત્યારે તમારે ઓપન કરવાનો છે. આ સૂચના ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. તમારે કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમારે છેલ્લે એને રજૂ કરવાના છે, બરાબર? તો દરેક વિદ્યાર્થી પ્લીઝ તમારો કેમેરો ચાલુ રાખજો 10 મિનિટ સુધી. ત્યાર પછી તમારે ક્લોઝ કરવો તો કરી શકશો. તો સર આપણે પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરીએ છીએ. સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટી સંચાલિત સર કેપી કોલેજ ઓફ કોમર્સ સુરતમાં હું ઓડિશા કમિટીનો ચેરમેન ડૉક્ટર મોહન માને, આચાર્ય ડૉક્ટર માર્ટિના મેડમ, આજના મુખ્ય સ્પીકર હરેન્દ્ર તોમર સર અને મારી કમિટીના અધ્યાપક મિત્રો તેમજ વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રોનો હું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સર કેપી કોલેજ ઓફ કોમર્સ 75 વર્ષની પ્લેટિનમ જ્યુબિલીની ઉજવણી કરી રહ્યું છે, ત્યારે અમે સૌ કેપી પરિવાર ખૂબ જ હર્ષોલ્લાસ અને આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. આ ઉજવણીના ભાગરૂપે આજના વેબિનાર પ્રિપેરેશન ઓફ ગવર્મેન્ટ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ, ગુજરાત સરકારની કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી કેવી રીતે કરવી એ અંગેના વેબિનારનું આયોજન કરેલ છે. આજના આ વેબિનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે છે. વિદ્યાર્થીઓને આ વેબિનારમાં કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો એ છેલ્લે અંતમાં 10 મિનિટમાં પૂછી શકશે. આપણો પ્રોગ્રામ 12:30 વાગ્યા સુધીનો છે, એટલે શાંતિથી દરેક વિદ્યાર્થીને સૂચના છે કે સાંભળજો અને તમારી સમસ્યા કોઈ હોય તો છેલ્લે એનું આપણે સમાધાન કરીશું. તો હું આ કાર્યક્રમને આગળ ધપાવવા માટે અને આપણા જે આજના મુખ્ય સ્પીકર છે હરેન્દ્ર તોમર સર, એમનો પરિચય આપવા માટે હું આપના ડૉક્ટર ભાવેશભાઈ બલિયાણા સાહેબને વિનંતી કરું છું. ડૉક્ટર ભાવેશભાઈ બલિયાણા સાહેબ, ઓવર ટુ યુ. यस, थैंक यू सर. Myself Dr. Bhavesh Baldania, assistant professor from Sir KP College of Commerce Surat. I heartily welcome to you sir. આજના આપના સ્પીકર શ્રી મહેન્દ્ર સિંહ તોમર સર, he is a founder of exam pathshala. He has completed graduation in computer science and he has also completed MBA in HRA and marketing. He has been awarded as a best faculty in Pan India by well recognized institution which has been awarded by World Education Summit. So World Education Summit is a biggest program organized by Government of India. Sir is awarded by this award. So I heartily congratulations and I heartily welcome to you sir on behalf of Sir KP College of Commerce Surat. Okay, over to you. थैंक यू सो मच सर. इतने उत्साह के साथ, इतनी उमंग के साथ और इतने हर्ष खुशी के साथ आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया. हर वर्ष और हर सेमेस्टर में
श्री माने सर और उनका मैनेजमेंट हर साल मुझे मौका देता है कि मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से और एग्जामशाला के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंच पाता हूं। तो मैं मैनेजमेंट का पहले ही धन्यवाद करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि फिर बाद में वक्त मिले या ना मिले, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त बड़ा काम आता है। इस दुनिया में दो ही चीजें बहुत कीमती हैं, पहली है आपकी एनर्जी और दूसरा है आपका वक्त। अगर आपका वक्त चला गया यानी समय चला गया तो शायद वो एनर्जी फिर कभी लौट कर नहीं आएगी, और अगर आपका एनर्जी दूसरे डायरेक्शन में लग रहा है इसका मतलब है आपका वक्त भी एनर्जी के साथ खराब हो रहा है। वक्त और एनर्जी दोनों एक साथ मिलकर चलते हैं, इसीलिए समय का और एनर्जी दोनों का सदुपयोग करें। अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो पहले मैं एक कहानी सुनाता हूं। कहानी यह है कि अभी कुछ दिन पहले मैं एक जगह घूमने गया, हिल स्टेशन से रिटर्न आ रहा था, तो मुझे दो ट्रेन चूज करनी थी। एक ट्रेन जो मुझे इटारसी तक भेज रही थी और एक ट्रेन जो मुझे इटारसी से सूरत। तो मैंने दोनों ट्रेन में टिकट बुक कर लिया। 1 घंटे का दोनों में अंतराल था। मैं जैसे ही पचमढ़ी से बैठा और इटारसी पहुंचा। जब मैं इटारसी पहुंचा तो मैं ट्रेन से उतर गया, पुणे एक्सप्रेस अपने रास्ते पर चल दी। मैं उतरने के बाद स्टेशन यानी प्लेटफॉर्म को चेंज करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। अपने मोबाइल का जैसे आप लोग सदुपयोग करते हैं वैसे हम भी कर रहे थे, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज, कुछ यहाँ वहां की चीजें देख रहे थे। जब हमारी ट्रेन आने का वक्त हुआ तो हमने देखा, जो हम लोग ट्रेन सर्चिंग में स्पॉट ट्रेन करते हैं वहां पर मैंने देखा कि मेरी ट्रेन को आने में 5 मिनट है। उन 5 मिनट के पहले मुझे याद आया कि मेरा सामान यानी जो लगेज मेरे साथ था वो मैं पुणे एक्सप्रेस में छोड़ दिया, भूल गया, क्योंकि मोबाइल में मस्त था, गाने सुन रहा था, किसी से शायद बात कर रहा था। अचानक से उतर गया, फिर दिमाग से निकल गया। 1 घंटे ट्रेन आगे चल दी। अब मेरी ट्रेन जो सूरत आने वाली है वो 5 मिनट बाद है प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि अब बैग तो गया, लेकिन अपने आप को नेगेटिव करूं इससे पहले मैंने सोचा कि उस बैग में था क्या। तो मैंने एनालिसिस किया कि बैग में कुछ कपड़े थे, शूज थे, सॉक्स थे, बहुत सारी चीजें जो थी जो मेरे काम की थी, पर हाँ उनके खो जाने से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इत्मीनान से 2 मिनट इस चीज को दिया कि मैं अपने आप को शांत कर दूं। फिर मैं जब शांत हो गया, फिर मैंने वहां पर एक कुली थे, उनसे पूछा मैंने कि मेरा बैग पुणे एक्सप्रेस में खो गया है, मुझे क्या करना चाहिए। मैं अभी तक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था एक चीज तो जा चुकी है और दूसरा जो मुझे कल पहुंचना और एक बहुत बड़ा सेमिनार लेना है वो भी चली जाएगी अगर मैं बैग के चक्कर में भागा तो। लेकिन प्रयास नहीं छोड़ना है। मैं 3 मिनट में प्रयास सोच रहा था कुछ करूं कि ट्रेन आने वाली थी। कुली ने मुझसे कहा आरपीएफ का ऑफिस है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, आप चले जाइए। मैंने कहा 5 नंबर से प्लेटफॉर्म 1 जाने में और लौट कर आने में काफी वक्त लगा। मैंने कहा कोई ऑनलाइन की सुविधा है, तो दूसरे बंदे, उनके साथ एक और बंदा था, उसने मुझे कुछ नंबर बताया, उन पर कॉल करो। मैंने कॉल किया, कॉल नहीं लगा। मेरी ट्रेन आकर खड़ी हो गई। सारे लोग उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, उन्हीं में से एक बंदा उतरा, इंडियन रेलवे का आई कार्ड पहने था। मैंने मुस्कुराकर उसको अपनी प्रॉब्लम बताई। उसने मुस्कुराकर हमें जवाब दिया कि देखो आरपीएफ में अगर आप कोऑर्डिनेट करेंगे तो शायद आपका बैग मिल जाए। मैंने बोला ठीक है, कोऑर्डिनेट करता। ट्रेन जो 5 मिनट बाद चलने वाली थी, मैंने देखा कि वहां टीसी प्रेजेंट था। मैं उनके पास गया और मैंने अपनी प्रॉब्लम उनको बता दी। उनको जैसे ही प्रॉब्लम बताई, उन्होंने आरपीएफ के साथ कोऑर्डिनेट किया और बोला कि जलगांव में आपका बैग मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो। मैंने सीट नंबर, पीएनआर और सारी चीजें प्रोवाइड कर दी और आराम से जाकर ट्रेन में लेट गया। दोनों ट्रेन का डिस्टेंस कवर हुआ। जलगांव में पहुंचा, जलगांव में नहीं मिला तो भुसावल पहुंचा। भुसावल में मेरा बैग मैंने कलेक्ट कर लिया आरपीएफ के द्वारा। अब जब मैं सूरत की तरफ दूसरी ट्रेन से बढ़ रहा था तब मैं एनालिसिस कर रहा था। वही 5 मिनट है आपके जीवन के आखिरी, जब आप क्विट कर देते हैं। कभी भी अंतिम क्षण तक आपको हार नहीं माननी। शायद उस 3 मिनट में आपका बहुत कुछ खोने वाला हो या बहुत कुछ मिलने वाला हो। याद रखिए 95% पीपल ऑफ इंडिया, 95 पीपल ऑफ यूथ ऑफ इंडिया इज नॉट वर्किंग फॉर मनी, दे आर वर्किंग फॉर एम्बिशंस। एम्बिशंस का मतलब है कि वो अपने सपनों के लिए जी रहे हैं। बिल्कुल जीना जरूरी है। फिर वो लास्ट के जो 3 मिनट 5 मिनट आपके पास बचते हैं, जब आप शायद सफलता की उस सीढ़ी पर पहुंच जाएं जहां पर आप पहुंचना चाहते, वहीं से आप क्विट कर देते हैं। इसीलिए अंतिम क्षण तक, जब तक सांस है, जब तक जान बाकी है, तब तक हौसला आप बनाए रखेंगे। वो कहते हैं ना, पंख है आसमां है परिंदा है हम, पंख है आसमां है परिंदा है हम,
अभी कैसे हार मान लें, अभी जिंदा है हम, तो हर वक्त जब तक सांस चलेगी, वक्त रहेगा, कभी हार ना मानूंगा। ऐसे ही मोटिवेशन प्रोग्राम के साथ मैं हरेंद्र सिंह तोमर, डायरेक्टर ऑफ एग्जामशाला, आप सभी का वेबिनार में स्वागत करता हूं। वेबिनार को शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं जो बता देता हूं। इंटरेक्शन सेशन होना चाहिए, पर वॉइस से क्या होता है, एक दूसरे को डिस्ट्रैक्शन होता है, इसीलिए कमेंट बॉक्स बनाया गया कि आप कोई भी अपनी क्वेरी अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में डिफाइन कर देता हूं। मैं कहता हूं कि खुद को मनाने का हुनर भी मुझको आता है, और मैं वो छोटा सा बंदा हूं जिसके घर समंदर भी चलकर आता है। नमस्ते, मैं हूं हरेंद्र सिंह तोमर, प्यार से मुझे लोग तोमर सर बुलाते हैं। आज इस एग्जामशाला के माध्यम से और आपके कॉलेज और मैनेजमेंट के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, जीपीएससी और यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे तैयारी करें, कैसे उनमें चीजें डालें, कब आपको एनर्जी डालना है, कब से समय देना है, हर एक चीज को क्लियर करेंगे। पर उस क्लियर करने से पहले आप सभी की मैं हाँ चाहता हूं कमेंट बॉक्स में, तो फटाफट से लिखे क्या आप तैयार हैं। अगर हैं तो लिखे यस, और नहीं है तो लिखे नो। अगर आपका यस आया तो मैं सेमिनार को, इस वेबिनार को आगे बढ़ा दूंगा। फटाफट से लिखे। थैंक यू सो मच। काफी लोग लिख रहे हैं कि मैं तैयार हूं। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो अब काफी बच्चे तैयार हैं। चलो, अब सेशन में आपको बहुत मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि आप तैयार है ना। जब आपका ब्लूटूथ ऑन है तो मुझे डेटा ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको एक्सेप्ट करते जाना है। एक्सेप्ट इज योर कमेंट बॉक्स। जैसे ही मैं कुछ पूछूं तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें यस और नो। तो जल्दी से शुरुआत कर देते हैं सेशन की। आज पहला जो मेरा सेशन का पहला टारगेट है वो है क्लैरिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब। क्लैरिफिकेशन का मतलब है आपके दिमाग में एकदम से पूरी चीजें क्लियर कर देना गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग। आप कहेंगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि बहुत सारे मिथ, बहुत सारी मार्केट में गलत इंफॉर्मेशन जो आप तक आज तक पहुंचाई गई है, वो हम आज चीजों को आपको सही तरीके से यानी दुरुस्त कर कर एक नए माध्यम से पहुंचाने वाले। आप कहेंगे कैसे? देखो, चीजों को कोरिलेट करते हैं। पहला, हमेशा आपको बोला गया है कि गवर्नमेंट जॉब है वो इतनी आसान नहीं है। तो क्या इतनी मुश्किल है कि कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता है? मुझे एक बात बताइए, इस समय जिस भी आप कह सकते डिपार्टमेंट में हैं, जिस भी पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, आपका मिनिमम स्कोर 33% से ज्यादा ही होगा। क्यों ज्यादा है आपका 33% से? क्योंकि इट इज योर पासिंग क्राइटेरिया। और जब ये पासिंग क्राइटेरिया आपका है और आप जानते हैं इस चीज को कि आपका परसेंटाइल 33% से ज्यादा है, जब 50% आप बनाते हैं ग्रेजुएशन में, 10th में, 12th में, तो घर वाले कहते हैं कि परसेंटाइल अच्छा नहीं बना। दे आर totally dissatisfied from your result, but always remember in the 55% or 50% you can top in government job। इतना परसेंटाइल आपके पास होगा तो आप गवर्नमेंट जॉब में क्या कर जाएंगे? टॉप कर जाएंगे। पीपल विल बी हैप्पी विद यू। व्हाई? क्योंकि यहां परसेंटाइल मैटर नहीं करता है, यहां मैटर करता है आपकी इफिशियंसी। तो मैं कहने का मतलब है कि अगर एक पेपर यहां 100 नंबर का होता है, तो अगर आप 50 मार्क्स या 55 मार्क्स लाते हैं, किसमें? दुनिया की सबसे खतरनाक परीक्षा जिसको आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या यूपीएससी कहते हैं, इसमें 52 और 55% लाने वाला बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 बनाया 2019, प्रदीप सिंह। तो पहला मिथ जो मार्केट में आपको फैलाया गया कि भैया बड़ा मुश्किल है गवर्नमेंट जॉब लेना, तो मैं आपको बता रहा हूं बड़ा आसान है गवर्नमेंट जॉब लेना। मैं फिर कह रहा हूं, अंतिम के 3 मिनट यानी आखिरी के जो 3 मिनट बचे हैं, उनमें जो बंदा क्विट कर देगा, जो बंदा छोड़ देगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। पेशेंस से सब कुछ मिलेगा। आप कहेंगे कैसे पेशेंस से? आप जानते हैं इस बात को, बारिश हमेशा नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर हमेशा हो रही होती तो शायद हमारी छत में छेद पड़ गए होते। मैं कहने का मतलब है, मेहनत करोगे
आउटकम मिलेगा। एक छोटा सा बीज आप जमीन में गाड़ देते हैं, उसको पानी देते हैं, कुछ दिन के बाद वो जो बीज होता है वो अपनी पूरी जान लगाकर खुद को अंकुरित करता है, उस मिट्टी को तोड़ते हुए अपने आप को बाहर निकाल देता है। यही बीज कुछ दिन बाद पौधा, पौधा फिर पेड़, और उस पेड़ में बहुत सारी डालियां, उनमें बहुत सारे फूल, और इन फूलों से बहुत सारे फलों का निर्माण होता है, और यही एक फल हजारों बीजों को जन्म देता है। एक छोटा सा बीज यानी एक छोटा सा इनिशिएटिव बहुत सारे इनिशिएटिव को जन्म देता है। इसीलिए आपके जीवन का पहला एक गुरु मंत्र है कि छोटा ही सही पर प्रयास करते रहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही हवा में उठाए रखिए। कौन कहता है छल्ली में पानी नहीं रुक सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। बस वही हौसला इनिशिएटिव को जन्म देता है गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब में जो दूसरा मिथ आपका चलता है वो ये है कि गवर्नमेंट जॉब में तो भैया सबसे ज्यादा इंजीनियर बच्चे या फिर सबसे ज्यादा टैलेंटेड कैंडिडेट कैन अप्लाई। तो ये मैं आपको बिल्कुल मिथ गलत कर दूंगा। आप कहीं कैसे, आपको मैं बताऊं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, इंश्योरेंस हो, किसी भी सेक्टर की आप बात करें, यहां पर कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है नॉन टेक्निकल वैकेंसी में। नॉन टेक्निकल का मतलब है ऐसी वैकेंसी जिनमें टेक्नोलॉजी का कोई टर्म यूज नहीं होता है, जैसे बैंकिंग, जैसे यूपीएससी, जैसे जीपीएससी। अब आप कहेंगे सिविल इंजीनियर बनना है तो फिर इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए पड़ेगी। अदरवाइज नॉर्मल जो जितनी वैकेंसी आती है गवर्नमेंट की, उनमें केवल और केवल दो चीजें चाहिए, एक आपका एज क्राइटेरिया और दूसरा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये दोनों चीजें अगर आपकी मैच होती है तो यू कैन फिल एनी फॉर्म, यू कैन एलिजिबल फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट चीज, जो नेक्स्ट मिथ है आपका वो ये होता है कि सर गवर्नमेंट जॉब में हमें मिनिमम क्राइटेरिया होता होगा क्या, कि हमें गवर्नमेंट में 60 परसेंटाइल चाहिए होती होगी। तो मैं कहूंगा नहीं। गवर्नमेंट कहती इफ यू आर परसुइंग और कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन in any stream, in any department, in any module, you can crack this examination। मतलब आपका ग्रेजुएशन केवल पास होगा तो भी आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब अगला मिथ, क्या सर हमें ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, क्या ओ लेवल के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, क्या सी प्लस प्लस की जरूरत पड़ेगी, क्या हमें जावा या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या हमें सर तो फिर इंग्लिश स्पीकिंग की, बिल्कुल नहीं। आपको केवल और केवल दो चीजें जान लेते हैं। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यानी एडमिन में जॉब करनी है, यानी प्रशासनिक जॉब करनी है, जैसे यूपीएससी जीपीएससी के छोटे डिपार्टमेंटों में काम करना है, एज अ ऑफिसर अगर आपको काम करना है, तो आपकी मिनिमम एज जो है वो 20 साल या 21 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज आपकी 32 साल, ठीक है। और जनरल कैटेगरी फिर सारी कैटेगरी के लिए अलग अलग है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। हम याद करते हैं कि मिनिमम एज 20 साल 21 साल प्लस, बहुत ध्यान समझना, प्लस एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट। बस आप कहेंगे दूसरी जॉब क्लेरिकल की, इसमें क्या चाहिए सर, इसमें मिनिमम एज 18 साल से ज्यादा। आपने बोला ठीक है। दूसरा बोले 10th पास या 12th पास। आपने बोला, अब बात समझ में आई, हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में लिखें यस और नो, फटाफट से बताएं दोस्त, जल्दी से। एवरीबडी मस्ट बी रिस्पॉन्स ओवर हियर। आप सभी को रिस्पॉन्स देना है और रिस्पॉन्सिबल बनना है। चलो, तो इतनी बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई। अब यहां के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आपने बोला सर कि मुझे जॉब मिल जाएगी गवर्नमेंट, मेरे पास ये सारे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तब सर गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें करना क्या है? तो सबसे पहले हमें जानना है गवर्नमेंट जॉब के बेनिफिट्स, क्योंकि अगर हमें बेनिफिट पता चल गए तो हर एक चीज पता चल जाएगी। तो सबसे पहला बेनिफिट गवर्नमेंट जॉब का, एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट जॉब, सबसे पहले आप पैसा कमाते, ये तो आप प्राइवेट जॉब में भी कमाएंगे, पर वो पैसा आप खर्च भी कर पाए यानी एक्सपेंस भी कर पाए, ये हर जगह पॉसिबल है। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपका टाइम निर्धारित नहीं है कि कब कब आपको सर्विस देनी है। मान लेते हैं कि आपके ऑफिस की टाइमिंग 10 बजे से शाम 6 बजे तक है, लेकिन आप जा रहे हैं सुबह 9 बजे और आ रहे हैं रात में 9 बजे।
अब एक बात बताइए, दिन भर आप अगर इस काम में रहेंगे, सारा दिन तुम काम करोगे, तो पैसा कब खर्च करोगे भाई? तो पैसा खर्च करने के लिए वक्त चाहिए ना, और वो वक्त कब मिलेगा? जब आप एक ऐसी स्पेसिफिक जॉब में होंगे जहां आप 10 से 6 मतलब 10 से 6, उसके बाद फैमिली, सोसाइटी और अपने लिए, खुद के लिए वक्त दे पाओगे। तो ये टाइम जो है, पैसा तो मिलेगा प्लस टाइम भी मिलेगा। दूसरी चीज सिक्योरिटी, क्योंकि पैसा तो सब दे रहा है, पैसा हर दिन कौन दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट रोल होगा। और गवर्नमेंट जॉब में हमेशा आपको सैलरी मिलती रहेगी। मतलब कोविड आ जाए, कोरोना आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं रहेगी। अच्छा एक बात बताता हूं, कोविड में अगर आपके पेरेंट्स या आपके फादर, आपकी मदर किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही होंगी, तो मैं गारंटी देता हूं 80% ये हुआ है कि सबकी सैलरी डिक्रीज कर दी गई। वाई? 80% लोगों की, और जिनका 1 लाख सैलरी होगा वो इस समय 15,000 में काम कर रहे हैं। वाई इज इट सो? क्योंकि जब प्राइवेट को लॉस होगा तो प्राइवेट पैसा कहां से देगा? और यही टाइम जो आप प्राइवेट कंपनी को देते, उससे पहले अपने ग्रेजुएशन के साथ इसी चीज को टाइम देंगे तो इसका बेनिफिट मिलेगा। थर्ड पोजीशन, अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं और अगर आप आज अहमदाबाद में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो प्राइवेट जॉब में आप शिफ्ट नहीं हो पाए, क्योंकि उसकी तो कंपनी यही है। आप इसी जॉब को ट्रांसफर कर सकते हैं सेल्फ ट्रांसफर रिक्वेस्ट के थ्रू, इंडिया में कहीं पर भी। ये फायदा है गवर्नमेंट जॉब का कि अगर सेंट्रल की जॉब पकड़ ली आपने, एसबीआई में पीओ है, एसबीआई में क्लर्क हैं, आईबीपीएस के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो आप इंडिया के किसी कोने में ट्रांसफर ले लें। कल शादी हो गई, हस्बैंड का कहीं ट्रांसफर हो गया, तो आप भी वहां ट्रांसफर ले सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? हाँ या ना? फटाफट से बोलो। सबको बोलना है। चलिए इतनी बात क्लियर हुई सबको? वेरी गुड। चलिए तो नेक्स्ट, बहुत लोग बहुत लोग मेरी बात समझ गए हैं, बहुत लोग अभी बात समझेंगे। देखो बहुत जरूरी है कनेक्टिविटी का। इफ आई एम सेइंग यस और नो, तो आपको लिखना है यस या नो। मैंने बोला हाँ या ना, तो आपको लिखना है हाँ या ना। कनेक्टिविटी रहेगी तो मेरी बातों को एकदम पकड़ पाओगे। मैं हाँ ना क्यों बोलूं, हर बार यस नो बोलूं? क्योंकि अगर मैं बात को चेंज कर रहा हूं तो आप समझना चाहिए कि हाँ डिजायरेटली चेंज हो चुका है, यू टर्न लग चुका है, चेंज हो गया, फ्लक्चुएशन हो गया, बातों में परिवर्तन होगा। इसीलिए अगर मैं हाँ बोलूं तो हाँ लिखना है, ना बोलूं तो ना। यस नो बोला मतलब मेरी बात को आप समझ पर तुरंत कनेक्ट हो गया कि यस नो बोला मतलब यस लिखना। ऐसा नहीं कहानी में कहीं खो गए। चलिए आगे चलते हैं, अगली बात। अब आप कहेंगे सर ये सब चीजें बता दी, गवर्नमेंट जॉब बताइए कितने प्रकार की। तो देखो गवर्नमेंट जॉब जो है ना बेटा, वो होती है 4 प्रकार की। पर मैं आपको पहले के स्ट्रक्चर समझा देता हूं। गवर्नमेंट जॉब में बच्चे जो तैयारी करते हैं वो 2 प्रकार से करते हैं। या तो सिविल सर्विसेज करेगा बच्चा तैयारी, या 1 डे एग्जाम करेगा तैयारी। आप कहेंगे कैसे? आप बोलेंगे व्हाट इज सिविल सर्विसेज, जैसे यूपीएससी, जीपीएससी, एमपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, आरपीएससी, डब्ल्यूपीएससी। ये हो गई सारी स्टेट लेवल की एग्जाम, और ये हो गया सेंट्रल का। आपने बोला ठीक है। 1 डे का मतलब सर बैंक, रेलवे, इंश्योरेंस, एसएससी, और इनमें कोई भी एक पुलिस सेक्टर, ये सब हो गई 1 डे। ऐसे एग्जाम जिनका सिलेबस कम, जिनका क्राइटेरिया कम, जिनके लिए पढ़ाई कम, और जिनके लिए जल्दी नौकरी और सैलरी भी कम, ऐसी जॉब वो एक एग्जाम एक दिन में खत्म हो जाते हैं। इसीलिए दैट काइंड ऑफ जॉब कॉल्ड इज 1 डे एग्जामिनेशन। दैट्स ग्रेट। अब नाउ इफ यू आर हैविंग एम्बिशंस, आपको जीवन में राजा बनना है, आपको जीवन में चाहिए कि बड़ी प्रतिष्ठा हो, आपके जीवन में बहुत पैसा हो, पावर हो, लोग तुम्हें जाने, तुम्हारा रुतबा हो, सोसाइटी तुम्हें रिस्पेक्ट दे, स्टेटस मेंटेन हो, ये चीज कर लो, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। क्लियर और नॉट? बट बोथ आर द सेम एग्जामिनेशन। कहेंगे कैसे? भाई एक बात समझो, 1 साल आप इसको बहुत कंसेप्चुअल समझना। जो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को समझ गया वो बहुत आगे जाने वाला है। आप कहेंगे कैसे? देखो 1 ईयर प्लस 1 ईयर प्लस 1 ईयर,
ये मैंने ग्रेजुएशन के 3 साल को डिवाइड कर दिया। इन 3 सालों में आपका कम से कम 3 लाख रुपए खर्च होगा। आप कहेंगे कैसे? तो देखो, पहला खर्चा कॉमन खर्चा, फूडिंग, ट्रैवलिंग, मेकअप्स मतलब समझ रहे हैं ना? मेकअप्स मतलब अपनी एम्बिशंस को, अच्छे कपड़े खरीद लिए आपने, अच्छा मेकअप कर लिया आपने, अच्छा हेयर कट रखा आपने, स्ट्रेटनर करा लिया, हाइलाइट्स करा लिए, नेल पेंट नया खरीद लिया, गाड़ी नई खरीद ली, मार्केट में अपना मेकअप बना रहे हैं आप, वैल्यू एडेड सर्विसेज कहते हैं जिसको। उसके बाद अब आपका सोशल एक्टिविटीज, इनमें मिनिमम आपका 3 लाख खर्च हो जाएगा। ये कॉमन खर्चा है, इस चीज को समझ लें आप, ये कॉमन खर्चा है। इसके बाद कुछ पढ़ाई का, कुछ और चीजों का, जो अदर एक्टिविटीज आप करते होंगे, कहीं पार्टी में चले गए, कहीं डोनेशन दे दिया, कुछ कर दिया, तो इतना खर्चा आपका 3 साल होना है। इस बात को ध्यान समझना। इसी में एक चीज और जुड़ जाती है कि भैया हमारा 50,000 और खर्चा हो गया। किस चीज का? तो गवर्नमेंट जॉब का। इस चीज को ध्यान समझना। ये दिमाग लगाता है यूपी, बिहार, राजस्थान का बच्चा कि भाई 3 साल मेरे खराब हो ही रहे, मेरे को कपड़े भी पहनने, खाना भी है, घूमना भी है, रहना भी है, मिशन भी करना, मेकअप्स भी करने, अपनी चीजों में बॉडी लैंग्वेज में एड भी करना, स्किल्स भी करना, सब करना। उसी समय क्यों ना हम गवर्नमेंट जॉब के 50,000 ऐड कर दें? तो ये ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कर लेता है। अब गुजरात महाराष्ट्र का बच्चा इस चीज को थोड़ी देर में समझ पाता है। वो क्या करता है, पहले 3 साल 3 लाख रुपया खर्च कर देता है, और जब ये खर्च हो जाता है उसके अगले साल वो पढ़ाई स्टार्ट करता है गवर्नमेंट जॉब की। या अभी भी नहीं गवर्नमेंट जॉब करेगा तो 2 साल मास्टर करने में लगा देगा, MBA, MCOM, ऐसे कोई भी मास्टर डिग्री उठा ली उसने, अब इसके बाद गवर्नमेंट जॉब करेगा। अरे दोस्त, ये 3 लाख देखो तुम्हारा खर्च हो ही गया, इधर फिर 3-6 लाख रुपया खर्च होना है, क्योंकि तो जब बड़े हो जाओगे तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा, और फिर यहाँ आके गवर्नमेंट जॉब में फिर ये कॉमन खर्चा तो आपको करना ही करना है। अब ये बात ध्यान समझना, जब ये बच्चा 3 साल अपने खर्चे में सिर्फ 50,000 ऐड कर वैल्यू एडेड सर्विसेज को ऐड कर दिया कि इसको पता था कि मैं 3 साल बाद कमाने योग्य होऊंगा और मैं फर्स्ट टाइम में गवर्नमेंट जॉब निकाल लूंगा। अब यहां का बच्चा 3 साल में खर्चा सेम ही कर रहा है, खर्चा एकदम सेम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टाइम खत्म हो गया, पैसा भी गया, टाइम भी गया। 3 साल बाद जगेगा, सोचेगा अब तैयारी करेंगे, क्योंकि आई हैव टेकन थाउजेंड्स प्लस सेमिनार इन गुजरात, इन महाराष्ट्र, और इनमें सारे बच्चों का एक मेरे से क्वेश्चन कि सर अगर हम TY यानी फाइनल ईयर और लास्ट ईयर के बाद तैयारी करें तो। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी करने जा रहे हैं या जिस चीज के लिए आप बनने जा रहे हैं, उस चीज की तैयारी के लिए आपको ज्यादा वक्त देना ही नहीं है। अगर आप BCom कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं और BSc कर रहे हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आज तक आपने हर दिन 6 घंटे पढ़ाई नहीं की है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, एग्जाम के 2-4 दिन पहले तुम एक्टिव हुए हो, तुम जागे हो हनुमान जी की तरह, कह रहे हम भी हैं लंका तक पहुंच सकते, भाई तुम पढ़ना शुरू कर दिए, और पढ़ना शुरू करने के बाद आराम से 50% बनाए। देखो, टेल मी फ्रेंकली, ये बात सही है या नहीं? हाँ या ना कमेंट बॉक्स में लिखें। एग्जाम के 1-2 दिन पहले एक्टिव होते हैं या नहीं? हाँ या ना फटाफट से कमेंट में बताएं। अगर नहीं होते तो ना भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से फटाक से हाँ या ना, एक हाँ एक ना। हाँ सही है। कुछ बच्चे हैं जैसे कुछ होंगे जो हर दिन पढ़ते होंगे, लेकिन एवरी डे यू आर नॉट गिविंग 6 आवर, 6 घंटे आप एक देखो। 90% बच्चा सर, 90% बच्चा एग्जाम के 1-2-4 दिन पहले बहुत एक्टिव हो जाता है। अब इस बात को समझें कि जो 6 मंथ पीरियड ऑफ टाइम है उसमें केवल हम मान लेते हैं 1 मंथ आप एक्टिव रहे, 5 महीने आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। यही 5 महीने में आप हर दिन 4 घंटे दीजिए गवर्नमेंट एग्जाम को। बस, मैं नहीं कह रहा हूं सर गवर्नमेंट एग्जाम को, ना ही मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब को। तब आप कह रहे क्या? अपने लक्ष्य को। दिस इज कॉल्ड डेस्टिनेशन। आप कहेंगे नहीं सर डेस्टिनेशन भी फिक्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अपने एम्बिशंस को। आप कहेंगे एम्बिशंस भी फिक्स नहीं है, तो अपने गोल को। गोल भी फिक्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो टारगेट बनाया होगा जीवन में, टारगेट को। आप कहेंगे टारगेट भी फिक्स नहीं है, इसका मतलब है मुसाफिर हूं यारो, न घर है ना ठिकाना, बस चलते जाना। गलत डायरेक्शन में है आप, गलत एडवाइजर है आपका। इन चीजों में से एक चीज तो आपको फिक्स करनी ही पड़ेगी, और उसको डेली 4 घंटे दीजिए। तो आपको पता है गवर्नमेंट जॉब आपको 3 घंटे 4 घंटे में भी मिल सकती है, लेकिन
और उसको और अच्छा कर ले। अगर हम 1.5 साल 1 साल 2 साल कंटिन्यू पढ़े तो सोचो अगर हर दिन 4 घंटे देंगे गवर्नमेंट जॉब झट से मिल जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं अलग से सेपरेट टाइम निकालेंगे, वो कभी टाइम नहीं आता है। मैंने आज तक नहीं देखा कभी कि व्हेन यू विल कम डार्लिंग फ्लावर ब्लूम इन गार्डन, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। फूल मुरझा जाएंगे, वो कभी नहीं आएंगे जिनका तुम इंतजार कर रहे हो। वक्त कभी आएगा ही नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, और जिस दिन मेहनत करने लगोगे आपका वक्त खुद ब खुद आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, क्लियर और नॉट? तो लिखना है क्लियर और नॉट। अगर क्लियर है तो लिख दे क्लियर, जो ज्यादा लिखने में वो CLR लिख दे, तो हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। फुली इंटरेक्टिव सेशन है भाई, आप जितना बोलोगे उतना ही मैं डिलीवर करूंगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो अभी आपको मेरी बातें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। अब आपको क्या करना है, यूपी बिहार राजस्थान के बच्चे को नौकरी अपनी नहीं लेने देनी है। मतलब कहने का है कि अगर आप यूपी बिहार राजस्थान का बच्चा 10th के बाद 12th और 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब प्लस ग्रेजुएशन की तैयारी करता है, उसके तुरंत बाद कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब ले लेता है, तो कितनी अच्छी बात हो गई। तभी तो आज देखो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर आपके यहाँ कौन है, कमिश्नर कौन है, GST कमिश्नर कौन है, IAS ऑफिसर कौन है, IPS कौन है, IFS कौन है, IRS कौन है, जितने भी सेंट्रल के 59 डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री के, उनमें देख लो कहाँ के लोग हैं, यहीं के लोग। अब इन लोगों में ऐसा नहीं अपनी लड़ाई है इनसे, ना ना, अपना मतलब ये है कि भाई अगर गुजरात में आयकर विभाग है, इनकम टैक्स है, और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं, तो आपको क्यों नहीं जॉब मिली? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं जॉब मिलेगी कहां से, और आप भी इनकम टैक्स पे करेंगे, आपको भी पुलिस रोकेगी, आपका भी GST जाएगा, आप एंटरप्रेन्योर रहेंगे तो GST भरना पड़ेगा, 18% GST देना पड़ेगा। जब 1 करोड़ का टर्नओवर होगा तो 18 लाख तुरंत गवर्नमेंट आपसे ले लेगी, हिसाब भी मांगेगी। तो आप क्यों नहीं गवर्नमेंट के कर्मचारी बने, ताकि आपको रिलैक्सेशन मिले? क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं। इस बच्चे ने वो तैयारी शुरू कर दी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बच्चे को तैयारी करने दो, तुम्हें भी तैयारी शुरू करनी है, गुजरात प्लस महाराष्ट्र। तुम क्या करो, ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते तो पहले 12th करो, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर छोड़ दो, सेकेंड ईयर से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि इनफ मैच्योर हो जाओगे आप, चीजें आपको समझ में आने लगेगी, दिमाग में वास्तविकता जनरेट हो जाएगी, 19 साल एज हो जाएगी मिनिमम, तो आप यहां से चीजें समझना पकड़ना शुरू करोगे। साथ में कौन सी गवर्नमेंट जॉब करना है तो ये फिक्स कर ले, बस उसी गवर्नमेंट जॉब की 2 साल तैयारी करें, 2 इयर्स। कोई भी सिलेबस गवर्नमेंट जॉब का उठा लो, वो 8 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। 8 × 8 इक्वल्स टू 16 मंथ। अब हमारे पास 2 साल में 24 मंथ्स हैं, और हम देखें कि 16 महीने में हमने 2 बार सिलेबस पढ़ लिया। एक बार पढ़ने से अगले दिन 55% बन रही, और 2 बार सिलेबस पढ़ने से प्लस प्रैक्टिस को टाइम भी मिल रहा, करने से आपका सिलेक्शन तय है, सुनिश्चित है। इस बात की मैं आपको आश्वासन देता हूं। अब आप कहेंगे जॉब के टाइटल बताइए, जॉब के प्रकार बताइए, और किस किस जॉब में हमें जाना चाहिए वो बताइए, तब हम आपको बताएंगे। यहां तक किसी को दिक्कत? शनि गजेरा कोई दिक्कत? रोहित रावारी सर कोई दिक्कत? साक्षी है? नहीं, वेरी गुड, नहीं प्रॉब्लम है, एकदम परफेक्ट चल रहे हैं हम लोग। अब मैं आपको परफेक्शन के साथ एक चीज बताता हूं। गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में अगर सिविल की बात करेंगे तो मैंने बताया UPSC GPSC, गवर्नमेंट में SSC रेलवे RBI। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब है कुछ प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर बनाया गया, गवर्नमेंट ने अपना बनाया, तो उनकी एग्जामिनेशन। अब सबसे पहले हमें ये बात जाननी है, गवर्नमेंट जॉब में 2 जॉब होती है, कौन कौन सी है उनको हम बता देते हैं। एक जॉब है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, और दूसरी है फाइनेंस सेक्टर। तो अभी आप कहेंगे कि आपने तो एक बताया सिविल सर्विसेज, एक बताया वनडे। बेटा वो तैयारी करने का तरीका बताया मैंने आपको, दिस इज कॉल्ड तरीका, प्रिपरेशन का तरीका। या तो ये करोगे या ये करोगे, ऐसा नहीं ये भी कर रहे और ये भी कर रहे, ये बांट देना है। पर कुछ एग्जाम इस कैटेगरी के, मतलब एडमिन कैटेगरी के यहां मिक्स है, कुछ यहां के एग्जाम यहां मिक्स है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम डीप में आपको बताने वाले हैं कौन से एग्जाम कहां मिक्स है।
देखिए, अगर आप कहेंगे सर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में पहले आप बता दीजिए या फिर फाइनेंस के बारे में, तो फाइनेंस को हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। चलते हैं आगे। सबसे पहले आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का क्लियर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी फुली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज होती है, उनमें सीधा गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है, साथ में उनके पास पावर होती है, जैसे पुलिस विभाग हो गया, यूपीएससी में आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, आईएफएस हो गया, आईआरएस हो गया, ग्रेड बी ग्रेड ए अधिकारी हो गया, इन सब की 4 प्रकार की नौकरी होती है। आप कहेंगे डिटेल में बताइए, तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी इज नोन एज ऑफिसर की जॉब। और मैंने पहले ही तुमको बताया, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में ऑफिसर की जॉब आएगी तो 20 साल 21 साल एज प्लस एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट कैन अप्लाई। वेरी गुड। नेक्स्ट सर, ग्रुप सी और ग्रुप डी मतलब क्लेरिकल की जॉब। आई ऑलरेडी टोल्ड you can fill the form of clerical after 18 plus 10th और 12th can apply this examination। अब हमें पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव 2 टाइप का है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है, एक जगह प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और एक जगह सीएम साहब बैठे हैं। अब गुजरात के सीएम चेंज हो गए हैं, लेकिन सीएम चेंज हो गए, लेकिन गुजरात के कर्मचारी तो सेम है ना, काम करने वाले तो सारे सेम है ना, और काम करने वाले सेम है तो उनकी भर्तियां कहां से होंगी? मतलब अगर सेंट्रल में ऑफिसर की जॉब निकलेगी तो कौन निकालेगा? यूपीएससी। स्टेट में निकलेगा तो कौन निकालेगा? जीपीएससी। और सर अगर हम महाराष्ट्र से हैं तो एमपीएससी। वेरी गुड। सर हम महाराष्ट्र से नहीं सर, हम तो मध्य प्रदेश से हैं, तो एमपीपीएससी। देखो ये पीएससी कॉमन दिख रहा होगा। मतलब मैंने जब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बोला, इसका मतलब है कि आप यूपीएससी प्लस पीएससी की तैयारी करेंगे। और पीएससी का मतलब है किसी भी स्टेट के एग्जामिनेशन की तैयारी। बोथ आर ऑल्सो नोन एज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब अगर आप क्लास 3 और क्लास 4 की तैयारी करेंगे सेंट्रल में, तो एसएससी कराएगा और यहां GSSB। अगर यहां पर गवर्नमेंट की 16 मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट है, तो 16 मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में ऑफिसर की जॉब और क्लेरिकल की जॉब ये दोनों निकालेंगे। यहां गवर्नमेंट के 59 डिपार्टमेंट है, जैसे इनकम टैक्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जीएसटी, कस्टम, एक्साइज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ऐसे पुलिस विभाग, जैसे 59 डिपार्टमेंट में ग्रुप ए, ग्रुप बी यानी ऑफिसर की और क्लेरिकल की। तभी तो हम कहते हैं कि हम असिस्टेंट कमिश्नर हैं जीएसटी में, तो जीएसटी वाला डिपार्टमेंट आ गया। हम असिस्टेंट ऑफिसर हैं या टैक्स असिस्टेंट हैं इनकम टैक्स में, तब एसएससी से आ गया। क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? डिटेल में चीजें समझ आ रही हैं दोस्त? जल्दी से बताइए, चीजें समझ में आ रही? अच्छा, कोई बच्चा बोर तो नहीं हो रहा? क्योंकि इंफॉर्मेशन हम थोड़ी ज्यादा देंगे आज। क्यों ज्यादा देंगे? क्योंकि आपको चीजें जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा ठीक है, सब हाँ लिख रहे हैं, वेरी गुड। मतलब चीजें क्लियर हो गई यहां तक। अब हम बात करें कि इनका जॉब रोल क्या है, इनका क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम कैसे भरे। पर उससे पहले अब बैंकिंग जान लेते हैं, क्योंकि ओवरव्यू सबका रखना जरूरी है। ओवरव्यू का मतलब, अब गूगल पे, यूट्यूब पे जाएंगे, कहेंगे व्हाट इज यूपीएससी, वो 15 वीडियो सजेस्ट करेंगे, तुरंत देख लेंगे कि पेपर 1 इतना, पेपर 2 इतना, पेपर 3 इतना, पेपर 4 इतना, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर आप 9 पेपर का पूरा एनालिसिस पढ़ लेंगे। पर वो जो मैं समझा रहा हूं, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। ये माइंड को एकदम शार्प बना देगी। क्यों? क्योंकि मैं जो गाइडेंस दे रहा हूं वो मुझे पता है कि मैं श्री केपी कॉमर्स कॉलेज में ले रहा हूं और यहाँ के बच्चों का लेवल कैसा है, उस हिसाब से मैं अपना गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। यूट्यूब पे आपको कॉमन चीज मिलेगी कि वो झारखंड का बच्चा देख रहा है, यूपी का देख रहा है, साउथ का देख रहा है, मलयालम में, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, किसी भाषा वाला बच्चा देख रहा है, उसको एक समराइज फॉर्म में एक डेटा दिया गया है कि जिसमें ऑथेंटिक डेटा रहेगा, और जो हम बताएंगे मोटिवेशनल प्लस ऑथेंटिक बताएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं, इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं और फाइनेंस सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। बैंक के जिन बच्चों के घर में पैसे को लेके थोड़ी तंगी है, लगता है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए, पर जल्दी चाहिए, ऐसी जॉब बताइए जो जल्दी मिल सकती है। तो बैंकिंग जॉब हमेशा जल्दी मिलती है। इस इंडिया के 2 एग्जामिनेशन है, यूपीएससी और बैंकिंग। ये दोनों एग्जाम हर साल टाइमली डिक्लेयर्ड होते हैं। इन दोनों के कैलेंडर 1 साल पहले ही आ जाते हैं कि अगला एग्जाम कब होगा, किस डेट को होगा, क्या प्रिपरेशन का मॉड्यूल रहेगा, क्या चीजें रहेंगी। और खास बात, यूपीएससी साल में 1 बार होता है, बैंक एसएससी 16 बार होते हैं। तो सब 16 बार एग्जाम होगा तो 16 बार लगने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जिनकी एम्बिशन बड़ी है
थोड़ा घर में सपोर्ट है कि 3 साल 4 साल अभी कुछ नहीं तुम करो, सिर्फ पढ़ाई करो, तब आप यूपीएससी करोगे। तो बैंकिंग की कैटेगरी में बता देता हूं। बैंकिंग में बेटा 2 प्रकार की जॉब आती है। मिनिमम एज 20 साल प्लस एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट कैन अप्लाई। ऐसा नहीं है ग्रेजुएशन में कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए कि आप बीकॉम हो तो ही, नहीं, कोई भी डिग्री। बैंकिंग जॉब में सबसे पहले स्केल 1, इसी को बोलते हैं आप असिस्टेंट मैनेजर। आप एक बैंक में गए और आपने कहा मुझे लोन दे दो, तो एक बंदे ने कहा कि मैं लोन नहीं दूंगा, लोन देंगे पीओ साहब। पीओ मतलब प्रोविजनरी ऑफिसर, ऐसा ऑफिसर जो प्रोविजन पीरियड पे है, कुछ दिन बाद इसको ब्रांच मैनेजर पे प्रमोट कर दिया जाएगा। इसीलिए इस पीओ को असिस्टेंट मैनेजर और इसको ब्रांच मैनेजर कहा जाता है। असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए आपको प्री परीक्षा यानी प्राथमिक परीक्षा, मुख्य कसौटी और इंटरव्यू राउंड देना पड़ेगा। आप कहेंगे क्लेरिकल मतलब इसके नीचे जो काम करता है उसको असिस्टेंट मैनेजर नहीं, सिर्फ असिस्टेंट। इसको असिस्टेंट मैनेजर क्यों? क्योंकि ये मैनेजर के असिस्टेंट पर है, असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा है। और इसको असिस्टेंट क्यों? क्योंकि ये असिस्टेंट का भी असिस्टेंट है। इसी को क्लर्क या फिर कैशियर की भाषा, आसान भाषा में कैशियर कहा जाता है। अगर प्राइवेट भाषा में कहोगे तो कॉर्पोरेट भाषा में तो टेलर कहा जाता है। तो असिस्टेंट, टेलर, क्लर्क, ये सब, कैशियर, ये सब एक भाषा है। इसके लिए आपको प्री परीक्षा और मेंस परीक्षा देनी है। आप कहेंगे सर प्री परीक्षा का मतलब क्या है, जल्दी से मुझे बताइए। मैं एकदम ब्रीफ में नहीं बताऊंगा, फटाफट बता देता हूं। प्री मतलब मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन, वेरी गुड। और अगर मेंस मतलब मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर के 200 क्वेश्चन। क्या सेम होते हैं? बिल्कुल, दोनों के पेपर एकदम सेम होते हैं। पेपर अलग अलग होते लेकिन पैटर्न एकदम सेम होता है। और प्री परीक्षा में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के कितने क्वेश्चन होते हैं? 100। कौन सी फॉर्म में? तो एमसीक्यू, 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 बोथ आर इन एमसीक्यू फॉर्म, बोथ आर इन एमसीक्यू फॉर्म, दोनों पेपर एमसीक्यू। यहां इंटरव्यू राउंड 50 मार्क्स का ऐड हो जाता है, बस, बाकी सिमिलर। आप कहें किस किस बैंक का एग्जाम आता है, तो देखो मैं बता रहा हूं। आरबीआई के 2 एग्जाम ऑफिसर असिस्टेंट, एसबीआई के 2 एग्जाम ऑफिसर असिस्टेंट, 2 एग्जाम कितने? मिनिमम 8 एग्जाम होगा ना बेटा। आगे चलते हैं। एलआईसी 2 एग्जाम, यूडब्ल्यूआईसीएल 2 एग्जाम, एनआईएससीएल 2 एग्जाम और एनआईसीएल 2 एग्जाम और यूआईसीएल 2 एग्जाम, तो 8 एग्जाम ये होगा। आप कहेंगे इंश्योरेंस क्यों बता रहे हैं सर? क्योंकि जो बैंक का पैटर्न है वही इंश्योरेंस का पैटर्न है। इंश्योरेंस गवर्नमेंट कोई अलग से डेटा नहीं देता है, सिमिलर डेटा होता है बैंक और इंश्योरेंस का। इसी वजह से बैंक प्लस इंश्योरेंस की तैयारी आप साथ करते हैं। और 8 16 एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए 8 + 8 16 एग्जामिनेशन, यानी बैंक, सॉरी मैं पेन चेंज कर लेता हूं जिससे आपको साथ दिखाई दे। सबसे पहले बैंक प्लस इंश्योरेंस की तैयारी के लिए हर साल 16 एग्जाम आएंगे। और इन 16 एग्जाम की तैयारी के लिए आपको केवल एक चीज पढ़नी है, वो है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर, बस। अब कंप्यूटर कई सालों से नहीं आता, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। अब बचा जनरल अवेयरनेस। ये बात क्लियर हो गई सबको? अब बैंकिंग की तैयारी करनी हो, नोट कर ले बेटा ये सब्जेक्ट नोट कर ले, क्योंकि ये सब्जेक्ट आएंगे ही आएंगे। हर एक परीक्षा में ये सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, हर एक स्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ये परीक्षाओं में ये चीजें आएंगी ही आएंगी। यानी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहा बेटा? वरना कहानी वहानी सुना, मजा कराए, बताओ। बोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ख्वाहिशों का कैदी हूं, हकीकत भी मुझे सजा देती है। और अब मोहब्बत में मजा नहीं आता, मुश्किलें ही अब मजा देती है। इसीलिए जुड़े रहिए, प्लीज बोर मत होना। आगे हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है भूषण सर? आगे बढ़ाएं चीजों को, ठीक है। अब आपने कहा सर मुझे आपने बैंकिंग बता दिया, मैं आपको एसएससी प्लस रेलवे भी बता देता हूं। क्योंकि एसएससी जो है वो हर साल गवर्नमेंट की 59 डिपार्टमेंट की जॉब निकालता है। इसी का दूसरा नाम होता है मिनी यूपीएससी। क्यों ऐसा? क्योंकि कुछ बच्चा यहीं से प्रमोट होने के बाद यूपीएससी पहुंच जाता है ना, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप, ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, समझ रहे? तो सी और डी की जॉब निकालता है। इसमें 3 प्रकार की जॉब होती है, एक 10th पास, एक 12th पास, एक ग्रेजुएशन पास। आप कहेंगे 10th पास मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, सीएचएसएल और सीजीएल, ये फॉर्म के नाम है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन, ये 3 प्रकार के सेंट्रल में एग्जाम आए। किस बेस पे? एसएससी के बेस पे। और ये तीनों एग्जामिनेशन में आप यहां पर एज अ क्लर्क बनेंगे,
क्लर्क का मतलब बिल्कुल चपरासी नहीं है, आपका लेटर राइटिंग का काम रहेगा। यहां पर आप एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर या असिस्टेंट बनेंगे, वेरी गुड। और यहां पर आप एज अ ऑफिसर बनेंगे। और इन सब के लिए मिनिमम एज मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब इन तीन चीजों को पढ़ने के लिए आपको, यानी इनमें 2 परीक्षाएं और होती हैं पुलिस की, उनके बारे में हम कभी डिटेल एनालिसिस फिर करेंगे। लेकिन आपको एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल तीनों की तैयारी करनी है तो आपको पढ़ना क्या है? मैथ्स, आपको पढ़ना क्या है? रीजनिंग, आपको पढ़ना क्या है? इंग्लिश, आपको पढ़ना क्या है? जीए प्लस जीएस। मतलब देखा जाए तो बैंक, एसएससी, रेलवे और इंश्योरेंस, इन 16 प्लस 3 19 और पुलिस के 2 एग्जाम मिला तो 21 एग्जामिनेशन के लिए सेम पढ़ाई करनी है। थोड़ा सा 80% सिलेबस मैच हो रहा है। एक चीज डिफरेंस है, वो थोड़ा मैथ का एडवांस लेवल और यहां जीए की जगह जीएस, बाकी खत्म। मजा आ रहा है? थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत मजा आएगा। आगे चले, यहां तक किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो बोलो। बताइए, कोई दिक्कत? अब जो बच्चा बैंक, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस की तैयारी करेगा उसका सिलेबस 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। अब यू आर हैविंग इनफ टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। आपके पास इनफ टाइम है, आप अपने आप की तैयारी, अपने एग्जाम की तैयारी आप तैयार कर सकते हैं अपने आप को। और केवल एक चीज से, क्या है वो चीज? क्या? केवल और केवल 6 महीने की पहले से प्रिपरेशन करके। अच्छा, हम जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, प्राइवेट एग्जामिनेशन हो, किसी की भी तैयारी तो पहले से करनी ही पड़ती है ना। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनाने से पहले मैं बताता हूं आपको यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। बताऊं या नहीं बताऊं? बोलो, यूपीएससी जानना चाहते हैं? टीना मैम, मैं आपको बताता हूं, अगर आपने रामायण नहीं देखी है तो कभी टाइम निकाल कर देखिएगा। कभी टाइम नहीं आपके पास मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ऐसा नहीं हम धार्मिक नहीं है, हम स्पिरिचुअल है, पर कुछ चीजें हैं जो हमारे माइंड से निकल गई है। क्यों निकल गई? क्योंकि समय नहीं मिला। पर आप जानते हैं एक चीज जो बहुत ही रहस्यमय है। 19 दशक के बाद, 19 के बाद, जब 19 वाले बच्चे जिन्होंने शक्तिमान देखा, उनके समय के बाद रामायण कभी चली नहीं। 2005 के बाद जिक्र ही नहीं हुआ। लेकिन जब कोविड आया, और जब कोविड आया, रामायण फिर से चलाई गई। और फिर से जिन्होंने राम का किरदार किया, गोहिल साहब, वो वापस आ गए, मार्केट में छाने लगे, लोगों ने फिर पसंद करने लगे। आपको वक्त मिलेगा इसी रामायण की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, लेकिन क्या आप उस वक्त के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो लिखें यस, नहीं है तो लिखें नो। ऑलवेज रिमेंबर, अपॉर्चुनिटी विल कम टू योर डोर एंड नॉक योर डोर। इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट इट देन गॉट इट, अगर नो तो नहीं। एक बार सिकंदर महान था जिसने दुनिया के 80% भाग पर कब्जा कर लिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य सिकंदर नाम था इसका सबसे बड़ा साम्राज्य। सिकंदर एक बार जब 80% देशों पर कब्जा कर लिया और सारी संपत्ति को हड़प लिया, तब एक बार किसी युद्ध में तलवार लग जाने की वजह से हाथ में दर्द हो रहा था इसको, और ये सैन्य कक्ष में सोने जा रहा था, और लड़ाई लड़कर आया था और सोने जा रहा था। काफी दर्द था, मतलब इतना दर्द था कि हाथ भी नहीं उठा पा रहा था। इसके सेनापति आया और बोला कि महाराज गुस्ताखी माफ, पर हमारे यहाँ से, यानी जहां हम रुके हुए हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी सी बस्ती है, और उस बस्ती में बहुत धन है, हम तुरंत कब्जा कर सकते हैं अगर चाहे तो क्या कहते हो महाराज, आज कब्जा करें कि कल कब्जा करें? सिकंदर उठा और बोला, आई विल नेवर वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, आई क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। अपने सेनापति से कहा, मुझे अपना मुकुट दो, मुझे अपना शाही तलवार दो, और मुझे मेरा कवच दो। कवच पहन के जिस हाथ से वो हाथ उठाने लायक नहीं था, उससे तलवार उठाकर 3 घंटे के अंदर उसने उस वो छोटे से साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। यकीन मानिए, जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, जब भी आप अपने चीजों को एक नई दिशा में देखेंगे, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं,
चीजें एक नए डायरेक्शन में दिखाई देना शुरू हो जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि कंफर्ट जोन से बाहर आए। अगर सिकंदर के पास 80% पूरी दुनिया पर कब्जा हो गया था तो उसको छोटे से गांव से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भूख होनी चाहिए। अगर भूख रहेगी, कहते हैं राह अब राही बदलना चाहता है, तख्त ए शाही बदलना चाहता है, राग भैरव गुनगुनाना चाहते, हम खुद नया सूरज उगाना चाहते, पेट पर थपकी लगाई बहुत सुना ली सबने लोरियां, अब प्रभाती हम सुनाना चाहते। कहने का मतलब है अब खुद से शुरुआत होगी। और यूपीएससी में मैं क्या खास बात बता रहा हूं उस चीज को समझिए। अब यूपीएससी करने के लिए बच्चा दिल्ली जाता है। मैं एकदम बात सही मानता हूं कि दिल्ली प्राइम लोकेशन है इस चीज को पढ़ने के लिए। एनवायरनमेंट मिलेगा, कल्चर मिलेगा, फैकल्टी सब मिलेगा। पर अगर आपने शैफीन हसन का, टीना डाबी का, पूजा यादव का, प्रदीप सिंह का, अथर का, जैब सर का, ये जितने यूपीएससी टॉपर रहे इनका नाम सुना है, और इनको पढ़ाने वाली सारी फैकल्टी अगर मैं आपको एग्जामशाला में दे रहा हूं तो मेरे हिसाब से एग्जामशाला डूइंग नंबर 1 वर्क इन गुजरात। That's why examshala having 2000 plus student over here. 2000 से ज्यादा बच्चा एग्जामशाला के पास है। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली वाली फैकल्टी यहां मिलेगी आपको। और क्यों मिलेगी इसके पीछे जिस दिन आप आओगे क्लास में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि कुछ चीजें आपको खुद भी तो करनी है। तो आप ये मत सोचिए कि हमें कल कुछ मिलेगा, कल कुछ नहीं मिलेगा, आज तैयारी कर लेनी है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, यूपीएससी में हमने सबसे पहले आईएएस सिविल सर्विसेज की तैयारी का सोचा। अगर हम सिविल सर्विसेज में यूपीएससी के बारे में सोचते हैं तो सर क्या ख्याल है आपका? तो यूपीएससी में ग्रुप ए और ग्रुप बी की जॉब होती है। ऐसी जॉब जो आपको यूनियन टेरिटरी में मिलेगी, केंद्र शासित प्रदेश में, ग्रुप बी की है। ऐसी जॉब जो आपको यूनियन टेरिटरी में नहीं बल्कि ऐसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस वगैरह पोजीशन पर मिलेगी, वो वाली जॉब आपको नॉर्मल स्टेट में मिलेगी, ना कि केंद्र शासित प्रदेश में। वो ग्रुप ए की जॉब है। आप कहेंगे सर ग्रुप ए और ग्रुप बी की दोनों की मुझे जॉब चाहिए, पर कंडीशन अप्लाई है कि मुझे मिलेगी कैसे? तो सबसे पहले आपको 3 चीजों को फॉलो करना है। पहली प्री परीक्षा, उसके बाद मेंस परीक्षा, उसके बाद इंटरव्यू राउंड। आप कहेंगे क्या है प्री परीक्षा? प्री है एमसीक्यू की परीक्षा जिसमें केवल आपको पास होना है, वेरी गुड। आप कहेंगे मेंस, मेंस मतलब है रिटन की परीक्षा, डिस्क्रिप्टिव की परीक्षा, इंटरव्यू आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होंगे, इसी के बिहाफ पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट मतलब रैंक बनेगी, और उसी रैंक के हिसाब से आप ग्रेड ए और ग्रेड बी किस में जाएंगे वो डिफाइन होगा। मतलब हियर इज इंपोर्टेंट नॉट प्री नॉट इंटरव्यू, हियर इज इंपोर्टेंट मेंस। व्हाट इज मेंस? तो लेट्स टॉक अबाउट मेंस। सबसे पहले मेंस की बात कर लेते हैं। प्री क्या है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर मेंस की बात करेंगे। व्हाट इज प्री? प्री क्या है? प्री है पहली परीक्षा जिसमें यार दोस्त अपने 2 पेपर होंगे। 2 पेपर में पहला पेपर जनरल स्टडी का, फिर होगा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, मतलब एप्टीट्यूड का। मैंने बोला था याद कर लो, ये एप्टीट्यूड क्या है? मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट पीछा नहीं छोड़ेंगे। जीपीएससी के बारे में बताऊंगा तब भी ये सब्जेक्ट मिलेंगे, बैंक के बारे में जाओगे तो, एसएससी के बारे में, रेलवे के बारे, सब जगह ये 3 सब्जेक्ट कॉमन मिलेगी मिले। प्लस करंट अफेयर पढ़ लिया तो लाइफ झिंगा लाला हो गया, आपको कोई टेंशन नहीं लेने, सब कुछ पॉसिबल है। फिर आप कहेंगे सर जीएस मतलब एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मतलब आपने यहाँ जीसीईआरटी पढ़ा होगा अगर आप गुजराती माध्यम से होंगे, और इंग्लिश मीडियम से होंगे तो एनसीईआरटी पढ़ा होगा। मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, ये जो कॉमन सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट का एक पेपर कितने क्वेश्चंस का? 100 का। कितने मार्क्स का? 200। ये 80 क्वेश्चन का, कितने टोटल? 400 का प्री होगा। अब आपने कहा कि सर 400 का, अब आपने कहा कि 400 का अगर प्री होता है तो सर मेंस कितने मार्क्स का होगा? देखो सब लोग मेरे वेबिनार में ध्यान से सुनेंगे, मेंस कितने मार्क्स का होगा। मैं मेंस के बारे में बता रहा हूं। मेंस जो होगा वो होगा अलग से, क्योंकि वो प्री में कोरिलेट नहीं होगा। मतलब प्री इज अ क्वालिफाइंग नेचर, और जैसे ही क्वालिफाइंग नेचर का मतलब होता है कि जो पहला पेपर है, यहां मैं डिस्क्राइब करके लिख रहा हूं, जो पहला पेपर है उसमें कोई फिक्स नहीं है कि कितने मार्क्स आपको लाने हैं। लेकिन जो दूसरा पेपर है, पेपर 2, उसमें फिक्स है कि 200 में से आपको 66 मार्क्स लाने पासिंग के लिए। बस मतलब इस पेपर 2 में 66 मार्क्स ले आए 200 में से तो आप पास हो गए, वेरी गुड। और प्री में, पेपर 1 में उतने मार्क्स जितना प्री का कट ऑफ जा रहा है। आपने बोला हम पास हो गए, आगे चलें। आगे आप पहुंचे तो आपको 9 पेपर मिलेंगे, उन 9 पेपर को छोड़ देना है आपको। बस ये याद रखना, जो पहला पेपर और दूसरा पेपर रहेगा ये भी यहाँ क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। मतलब मेंस के दोनों पेपर क्वालिफाइंग नेचर रहेंगे। इनमें कितना परसेंट चाहिए पड़ेगा? तो 25%, यानी 75 मार्क्स चाहिए है
पासिंग के लिए। अब ये दोनों पेपर को ध्यान से समझे। इंडिया की कोई भी एक भाषा, गुजराती, मराठी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, जो भी आप एक भाषा लेते हैं उस भाषा का एक पेपर होगा, वो भी डिस्क्रिप्टिव में। फिर आपका एक इंग्लिश का पेपर होगा, आप कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, आरसी हो गया, पैरा जम्बल, इन सब का। फिर आप कहेंगे अब ये पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक के कंटिन्यू मार्क्स आपके रैंक में ऐड होंगे, वो होंगे 1750। आप कहेंगे पेपर 1 मतलब ऐसी राइटिंग। फिर आप कहेंगे जीएस मतलब हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आप कहेंगे वेरी गुड। पेपर 3 मतलब गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, आपने कहा वेरी गुड। हमने कहा पेपर 4 मतलब टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डाइवर्सिटी, एनवायरमेंट और सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपने बोला ठीक है। फिर उसके बाद पेपर 5 मतलब इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। व्हाट इज ऑप्शनल सर? 42 सब्जेक्ट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, एक सब्जेक्ट आपको लेना है, जैसे आपने हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटी ले लिया, अकाउंटिंग ले लिया, ऑडिट ले लिया, कोई भी एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। 7 पेपर मल्टीप्लाई बाय 250, टोटल हो गया आपका कितना? 1750। 275 मार्क्स का इंटरव्यू। अब आपको इंटरव्यू से डर लगता है, एकदम भूल जाए इंटरव्यू। अब तक का जनरल का कट ऑफ कितना गया है विदाउट इंटरव्यू? तो हम बताते हैं आपको 650। और ये 650 मार्क्स में से आप ले आए 900 मार्क्स, ध्यान से समझना। और 900 मार्क्स ले आए, फिर आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में केवल आपको 50 मार्क्स मिले, टोटल करो 950 हो गया। ऑल इंडिया रैंक 1 के मार्क्स थे 1072, किसके? प्रदीप सिंह के। हो गए पास ना? तो आपको इंटरव्यू की टेंशन नहीं लेनी। इफ यू आर नॉट वरीड अबाउट इंटरव्यू, तो नो नीड टू बी वरी, बिकॉज मेंस इज हियर। आपके पास मेंस 1750 मार्क्स का है, जितने खींच के मार्क्स ला सकते हो मेंस में लाइए। और ये है प्रदीप सिंह ऑल इंडिया रैंक पर। अब ऐसे ही गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, जिन बच्चों के दिमाग में एकदम क्लियर है कि इंग्लिश मीडियम के थ्रू मुझे यूपीएससी करना है, उनको जीपीएससी करने की जरूरत ही नहीं। जो सोचते हैं हिंदी मीडियम से यूपीएससी करना, उन्हें जीपीएससी, एमपीएससी कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि 80% सिलेबस मैच कर जाएगा। आप बोलेंगे कैसे? देखो, जब आप यूपीएससी करोगे ना दोस्त, तो पब्लिक सर्विस कमीशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप कहेंगे पहले तो इसके नाम में पब्लिक सर्विस कमीशन दिख रहा है, दूसरा पूरा इंडिया पढ़ लेंगे दोस्त, तो स्टेट में आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट में आने वाली गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब सिमिलर होंगे जो आपको मैच कर जाएंगे। और आपको पास होने के लिए केवल 33% मार्क्स ही चाहिए, बस आप पास हो जाएंगे, खत्म है कहा। और 50 आ गए तो इंडिया टॉप कर जाओगे। आगे बताते हैं। अब बताएंगे हम गुजरात लेवल की वैकेंसी। अगर आप गुजराती मीडियम से और गुजरात से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, कोई दिक्कत नहीं, आपका दोनों सर्टिफिकेट हर जगह चलेगा। मान लेते हैं आप गुजरात से हैं और आप एससी कैटेगरी से हैं, हैंडीकैप कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से, जिस भी कैटेगरी से, वो काउंट होगी यहाँ गुजरात में, सेंट्रल में भी होगी। गुजरात में 3 प्रकार की जॉब आएंगी, एक क्लास 1 एंड 2, एक आएगी सुपर क्लास 3 और एक आएगी क्लास 3। आप क्लास 3 बोले तो सर क्लर्क हो गया हमारा, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग एग्जाम को कंडक्ट करेंगे। यहां पर ये असिस्टेंट हो गया और यहां पर ये ऑफिसर हो गया। जब भी कोई बच्चा ऑफिसर बनने जाएगा, इंटरव्यू होगा ही होगा, मतलब पहला इंटरव्यू तो चलो फिक्स हो गया, उसके बाद मेंस होगा, उसके पहले प्री होगा, मतलब प्री मेंस इंटरव्यू 3 चीजें। ऑफिसर, ऑफिसर मतलब जैसे तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, जिला रजिस्ट्रार, पुलिस अधीक्षक, पुलिस इंस्पेक्टर, ये सारी जॉब क्लास 1 2 की। जितनी भी गुजरात गवर्नमेंट में ऑफिसर रैंकिंग की जॉब आएगी, आप कहेंगे एचओडी, मतलब एचओडी का मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो भी क्लास 1 2 ही सिलेक्ट करेगा। आप कहेंगे सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो भी यहां से जाएगा। आप कहेंगे कमिश्नर, वो भी यहां से, कलेक्टर वो भी यहां से, एसपी वो भी यहां से, पुलिस इंस्पेक्टर वो भी यहां से, मतलब बड़ी लेवल की ऑफिसर की जॉब सारी क्लास 1 2 ही कवर करेगा। और ये क्या है, असिस्टेंट डीवाईएसओ हो गया, एएसआई पीएसआई हो गया, ये सारे एग्जाम ये कंडक्ट, दोनों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। आप कहेंगे वेरी गुड। हम कहेंगे क्या है क्लास 3? तो क्लास 3 एक क्लर्क बार पास कैंडिडेट कैन अप्लाई। आपको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, 2 चीजें बता रहा हूं दोस्त। इस साल तलाटी की 5000 वैकेंसी आने वाली है बार पास पर, और उसके बाद कांस्टेबल की 13000 वैकेंसी आने वाली, टोटल वैकेंसी 18000, सीनियर क्लर्क की 2000, 20000 वैकेंसी आने वाली, 20000 वैकेंसी आप ही के लिए, मेरे लिए नहीं। और मैं क्या बात बता रहा हूं इसको ध्यान समझे, इसमें केवल एक पेपर होगा एमसीक्यू का, 1 पेपर एमसीक्यू। अगर पुलिस में जा रहे होगे तो फिजिकल परीक्षा, या फिर किसी तलाटी वगैरह में जा रहे होगे तो आएगा सिर्फ कंप्यूटर टेस्ट। मतलब अगर आपने एक पेपर के लिए तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन इसी साल तय हो जाएगा। मैक्सिमम कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट दे विल अप्लाई ऑन इट।
आप कहेंगे अगर आप कांस्टेबल देखने जाएंगे इस समय गुजरात कांस्टेबल में, तो सबसे ज्यादा 2 जगह के आपको लोग मिलेंगे। पहला लोग होगा आपको कह सकते सौराष्ट्र से, जितना भी सौराष्ट्र का बच्चा होगा मैक्स टू मैक्स वो कांस्टेबल पुलिस में लगा होगा। सूरत का प्रॉपर बच्चा नहीं आपको मिलेगा, अहमदाबाद का प्रॉपर बच्चा नहीं मिलेगा, मेहसाणा तरफ चले जाएंगे आप राजकोट तरफ चले जाएंगे तो वहां का जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा होगा वो पुलिस में। दूसरा उसके बाद मराठी बच्चा आपको सबसे ज्यादा पुलिस में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनको पता है गवर्नमेंट जॉब के बारे में। सुविधाएं जहां कम होंगी, वो कहते हैं आपातकालीन जब परिस्थितियां बनती हैं तब अपॉर्चुनिटी का निर्माण होता है। आपातकालीन का मतलब है जब इमरजेंसी क्रिएट होती है, अर्जेंसी क्रिएट होती है, तभी अपॉर्चुनिटी बनती है। आविष्कार कब होता है? जब इमरजेंसी आती है। इसीलिए जिनके पास प्रॉब्लम ज्यादा होंगी वो तुरंत कैचअप कर गए होंगे। मेरी बात को क्लियर हुआ या नहीं? हाँ या ना फटाक से बोलो। और आपको कुछ नहीं अलग से पढ़ना, केवल जीसीआरटी और वही मैथ रीजनिंग इंग्लिश खत्म। उसके अलावा कुछ बाहर से नहीं पढ़ना। बढ़िया करंट अफेयर को टारगेट करें, जीसीआरटी पढ़ें। एग्जाम शाला आना चाहेंगे तो उसका डिटेल एनालिसिस बता दूंगा अभी। अंकित गोहिल सर ऑल गुजरात में टॉप करे, और इनका बड़ा अच्छा एक लाइन सुना था मैं इंटरव्यू में, कहते थे कि उड़कर दिखा वो माही परिंदे, भरी बरसात मर उड़कर दिखा ये माही परिंदे, खुले आसमां में तिनका भी रास्ता खोज लेते। अगर उड़ना है तो बरसात में उड़कर दिखाओ, मतलब मुसीबतों को चीरते हुए आगे निकल जाओ। और जो मुसीबत को चीरते हुए यानी बादलों को जो चीरते हुए बादलों के ऊपर उड़ जाता है उसको बारिश से डर ही नहीं लगता। इसीलिए आपको प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बता देते हैं। गुजरात में हाईएस्ट सिलेक्शन एग्जाम शाला ने दिए हैं। चाहे आप गुजरात पुलिस की बात करें, चाहे आप बैंक की बात करें, चाहे इंश्योरेंस की बात करें, आप रेलवे की बात करें, हाईएस्ट सिलेक्शन गुजरात में एग्जाम शाला द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। हो सकता है नेक्स्ट आप भी हो। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो आप, चाहे वो फेसबुक पर हो, चाहे वो टेलीग्राम पर हो। यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एग्जाम शाला को। इफ यू वांट टू नो कुछ अलग से जो आपके दिमाग में चलता है ना, कि ऐसी चीजें जो कह सकते हैं किसी को नहीं बता सकते, कि मुझे सर एंटरप्रेन्योर बनना है पर पैसे की कमी है, आई विल गाइड यू। आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको सजेशन दूंगा आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप गवर्नमेंट जॉब के तैयारी के मूड में हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आप एग्जाम शाला ज्वाइन करें, ना ना। मैंने आज तक किसी वेबिनार में नहीं बोला, आप काहे को बोलूंगा, मैं तो मतलब ही नहीं। अगर मैं बोलता तो मेरे यहाँ तो 2-4 नहीं 15-20 हजार बच्चा होता। मेरा काम बोलना नहीं, आपको डिसाइड करना है कि आपको करना है। अगर करना है तो पहले इस्तेमाल करना, फिर विश्वास करना। एक बार एग्जाम शाला आना, 1-2 दिन डेमो क्लास लेना, अच्छा लगे तो एडमिशन, नहीं लगे तो घर से प्रिपरेशन। एग्जाम शाला इंडिया, आई विल डेफिनेटली गाइड यू। सेकंड थिंग, इफ यू वांट टू कनेक्टेड विद मी, दिस इज HS Tomar. HS Tomar means Harendra Singh Tomar. You can follow me on Instagram. So I will definitely connect with you. If you are having any issue, doubt, query related to your personal information, related to your personal queries, so you can call me on 950. Madam will pick the call and you can direct contact to me. ठीक है, तो ये वाले हमारे नंबर हो गए, तो आप इस पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। लास्ट बात, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो टाइम बाउंड्रीज मत रखें। टाइम बाउंड्रीज का मतलब फीस का स्ट्रेस आपके दिमाग में ना हो। इसीलिए एग्जाम शाला गिविंग यू लाइफ टाइम कार्ड, कि आपने एक बार कार्ड ले लिया, 1 साल 2 साल 3 साल पूरा मेहनत करके पढ़ाई करें। कई मैंने बच्चे देखे जो हमारे यहाँ सेलेक्ट हो गए और उन्होंने जॉब छोड़ दी। मैं पीछे आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा इस लड़के का, हिमांशु का। ये हिमांशु को हम लोग प्यार से हम्प्टी शर्मा बुलाते हैं, क्योंकि मूवी आई थी हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, ये बड़ा पसंद करता था उसको, तो दुल्हनिया को नहीं वरुण धवन को। तो ये लड़के का नाम हम लोग हम्प्टी रख दी। LIC ADO में सिलेक्ट हुआ, असिस्टेंट में और क्लरिकल, इसने नौकरी छोड़ दी और इस समय ये RAS बोले तो इसी को ट्रांसलेट कर देते हैं RPSC की तैयारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि एम्बिशन बड़ा हो गया। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद भी छोड़ दिए और इस समय और बड़े गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं हरेंद्र सिंह तोमर, फाउंडर ऑफ एग्जाम शाला। बाबा तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुग पानी। इस संसार में हर एक मनुष्य के हृदय में परमात्मा का वास होता है और आपके सभी के हृदय में, आप सभी के अंदर परमात्मा का
भाव है, परमात्मा का अभाव है और परमात्मा स्वयं प्रेजेंट है। और आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को मैं हरेंद्र सिंह तोमर हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इतनी देर इतने पेशेंसली और इतने प्यार से सुना। तो बहुत बहुत मेरा धन्यवाद कि मैंने आपको वो चीज बता पाई जो मैं बताने आया था। मेरा मतलब मेरे अंदर बैठे हुए परमात्मा का, जिसने मुझे सद्बुद्धि दी और मैं आप तक वो कोऑर्डिनेट कर पाया। उसके साथ बहुत ज्यादा वाला बड़ा वाला धन्यवाद माने सर के लिए। इस समय ये आरबीआई के गवर्नर लग रहे हैं, एकदम देखने से सच में लग रहा है कि आज कुछ नया नोट निकाल ही देंगे। इनका भी मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। इतना एक्टिवली पार्टिसिपेशन, इतना टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस और इतना बच्चों के लिए करने के लिए तत्पर और हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए, हाँ, और मुझे भी अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं मैनेजमेंट का, यानी मार्टिना मैडम का, माने सर का, रश्मि मैम हो, रोहिणी मैम हो, अनुराधा मैम हो, जितने भी आपके टीम मेंबर हैं, उन सभी का मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर, वाइस वर्सा। चलिए सर, सी यू इन द नेक्स्ट हेलो सेशन। हेलो વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને આજના આપણા સ્પીકર એક્ઝામશાલા ઇન્ડિયાના જે સ્પીકર છે હરેન્દ્રસિંહ થોમાર સાહેબે આપણને ખૂબ જ સરસ મજાની એ યુપીએસસી, જીપીએસસી, બેંક લેવલની પ્રોબેશનરી ઓફિસરની જે કંઈ માહિતી આપી છે, પરીક્ષાલક્ષી માહિતી આપી છે, કઈ રીતે એક્ઝામ પાસ કરવાની, ક્યાં સુધી આપણે ત્યાં સુધી કેવી રીતે આપણે પહોંચી શકીએ એની આપણને માહિતી પૂરી પાડી છે। સાહેબ, સૌપ્રથમ તો હું એમનો આભાર વ્યક્ત કરીશ, પણ તેમ છતાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા પ્રશ્ન કોઈ હોય તો 1 by 1 આપણે સમય, આપણી પાસે 10-15 મિનિટ છે હજુ, તો કોઈ વિદ્યાર્થીએ કંઈ પ્રશ્ન પૂછવો હોય આજના આપણા વેબિનારમાં તો પૂછી શકો છો અનમ્યુટ થઈને। एक बच्चे का मैसेज आया है कृतेश का कि सर एडमिशन और इंक्वायरी के लिए क्या करें। सिविल 4 रास्ता है, उसी के निर्मल हॉस्पिटल के बाजू में एग्जामशाला की ब्रांच है, वहां पर आकर आप विजिट कर सकते हैं। 301 सुंदरम स्पेस नियर चामुंडा चाय, मैं लिख देता हूं, यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं सुंदरम। और या गूगल पे एग्जामशाला इंडिया कर ले, इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कर ले, इतना एड्रेस की कोई जरूरत नहीं। आगे दूसरा क्वेश्चन है सर कि सर कांस्टेबल में फिजिकल परीक्षा आप कराते हैं? बिल्कुल कराते हैं। पहला जो पेपर होगा आपका कांस्टेबल में वो फिजिकल ही होगा। जो बच्चे फिजिकल परीक्षा को पास करेंगे उनका ही रिटन एग्जाम होगा एमसीक्यू फॉर्म में, और इन दोनों की तैयारी एग्जामशाला कराते हैं। अगला आया बैंक एग्जाम नी बुक लेवानी। बिल्कुल कुर्ती बहन, मैं एक चीज आपको बता देता हूं कृतिका मैम, कि अगर आप तैयारी के मोड में हैं या आप अपने आप को एक्टिव अपडेट करना चाहते हैं, डोंट गो फॉर द बुक्स। इसका एक हार्म या यूजफुल क्यों नहीं होती उस चीज को समझे। 2019 में जो बुक प्रिंट हुई उसके बाद कोविड लग गया, 2020 आ गया, फिर कोविड लग गया, 2021 आ गया। अब ये बुक्स अभी तक अपडेट नहीं हुई मार्केट में, और इन बुक को लेने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। You actually want to update your information और update your program, but मैं आपको एक गाइडेंस दे देता हूं। आप यहां पर एक लकी बुक स्टोर है, वहां पर जाएं। अगर 3 बुक आपको मिल जाती है तो वो परचेस कर लें। पहली बुक है राकेश यादव मैथमेटिक्स, मेरा इनसे कोई रिलेशन नहीं है दोस्त, या फिर आपको अच्छा लगे तो अरिहंत, और अच्छा लगे तो लूसेंट, लेकिन अपडेटेड 2021 वाली। दूसरा जो है, ये मैथ्स की बता दी मैंने, दूसरा जो है वो इंग्लिश के लिए आप या तो अरिहंत, लूसेंट या फिर स्पेशलाइज नीतू सिंह की बुक, वेरी गुड, रेड कलर की बुक आएगी। इसके बाद थर्ड जो है वो कहेंगे मैथ रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए अरिहंत और लूसेंट में से कोई भी उठा ले चलेगा, और लूसेंट। और अगर कंबाइन पैकेज चाहते हैं बुक्स का तो एक अड्डा 247 कर आता है, वहां से परचेस कर ले, या फिर एग्जामशाला से ले सकते हैं, आपकी मर्जी। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग की फीस क्या है। देखो फीस जाने दो, हम 10-15 हजार रुपए आपसे लेंगे उसको बाद में, पहले ये जानना है कि आपको समझ में आएगा तब तो आप पैसा भरोगे ना। तो पैसे की टेंशन आप छोड़ो, पहले आप आओ, डेमो एमो लो, फिर उसके बाद आगे की बात कर लेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन आयुषी राणा ने एकदम सटीक पूछा है, फटाक से चलते हैं इसी चीज पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है
और ये क्वेश्चन सबको मुझसे पूछना चाहिए था। देखो बैंकिंग की एग्जामिनेशन इन्होंने पूछा कब कब आती है, तो इसको ध्यान से एकदम बांध लें। आरबीआई का एग्जाम हर साल दिसंबर जनवरी में आएगा, ठीक है। ये एग्जामिनेशन फरवरी मार्च में आएगा, वेरी गुड। ये एग्जामिनेशन आरआरबी का ये अप्रैल और मई में आएगा, और ये एग्जामिनेशन हर साल जून और जुलाई में आएगा। ये एग्जामिनेशन जुलाई से लेकर यानी अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में आएंगे सारे एग्जाम। मतलब एक चीज समझ में आ गई कि दिसंबर से लेकर नवंबर तक कंटिन्यू एग्जामिनेशन आते रहेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, सर क्लासेस ऑनलाइन होती हैं ऑफलाइन? ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है सर, बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको फुल ऑफलाइन क्लासेस मिल जाएगी। सर यूपीएससी मेंस के सारे पेपर गुजराती लैंग्वेज में लिख सकते हैं? बहुत सटीक क्वेश्चन, तुरंत चलते हैं। अभी एकदम कोई बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, ना ही कोई बच्चा मेरी बातों से बहकेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा टिपिकल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अब अच्छा एक बात बताइए, अगर गुजराती में लिख सकते तो गुजराती में बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि पढ़ाने वाले लोग नहीं है, ना ही मटेरियल है, ना ही कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन यूपीएससी की गाइडलाइन क्या कहती है? पेपर 1 से लेकर पेपर 5 तक, यानी पेपर 1 से लेकर पेपर 5 तक जो भी भाषा आप इस्तेमाल करेंगे वो सेम होगी, मस्ट बी सेम लैंग्वेज। मान लो मराठी तो मराठी चलेगा, मलयालम तो मलयालम, तेलुगु तो तेलुगु, कन्नड़ तो कन्नड़। मतलब जिस भाषा में आप ऐसे लिखेंगे उस भाषा में ये सारे पेपर आपको लिखना पड़ेंगे, ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। मतलब आप यूपीएससी की परीक्षा जो है वो किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, लेकिन ये पेपर केवल 2 भाषाओं में मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी। आप लिख किसी भी भाषा में सकते हैं, ठीक है। सर हमें बैंक के बाद यूपीएससी करना हो तो क्या करना पड़ेगा? पायल, आपको बैंक की तैयारी करनी ही नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि पहले गवर्नमेंट जॉब मिल जाए फिर यूपीएससी करें, सेम पैटर्न है। करिए आप तैयारी, 10 से 4 की जॉब करिए, उसके बाद फ्री टाइम निकालकर या घर से पढ़ना चाहते तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एग्जाम शाला में यूपीएससी स्पेशलाइज्ड फैकल्टी डॉक्टर एस.एम. आजाद सर हो गए, रिस्पेक्टेड एस.के. झा सर हो गए, हमारे उज्जवल सर हो गए, हमारे बहुत बड़ी बड़ी फैकल्टी अपने पास है, ओझा सर हो गए अपने, ये सारे टीम मेंबर आपके पास अवेलेबल है, इनसे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। वो बैंक का फॉर्म किस वेबसाइट से भरना है? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको एक ध्यान रखना है कि एग्जाम शाला इंडिया को आपको फॉलो कर लेना है। किस पर? इंस्टाग्राम पर, जिससे आपको एग्जाम जो भी एग्जाम आएंगे उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। इसके बाद मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर बताइए फॉर्म कहां से भरे, तो 2 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है कि EXAM एग्जामशाला इंडिया कर एक वेबसाइट हमारी है, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन आप मेरा प्रमोशन नहीं चाहते करना, कोई दिक्कत नहीं, सरकारीरिजल्ट.com से। किससे सर? सरकारीरिजल्ट.com से आप ये चीजों को देख सकते हैं। ये है सरकारीरिजल्ट.com की एक वेबसाइट, और यहां से सारी सेंट्रल की वैकेंसीज के बारे में आपको पता चलेगा। लेटेस्ट वैकेंसी कौन कौन सी है, एडमिट कार्ड किस क्या है, रिजल्ट किस क्या है। ये मैं अपना क्यों नहीं बता रहा हूं, हो सकता है कोई बच्चे नहीं ज्वाइन करना चाहते, नहीं एग्जाम शाला आना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर जाएं, कॉमन यूज करें। आपको लगता है कि नहीं एग्जाम शाला से पता चलता रहे, तो EXAM एग्जामशाला इंडिया.com सर्च करेंगे, तुरंत आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलो, आईएएस अधिकारी एग्जाम कैसे दें? मोहन सर शायद आप डिले होंगे, कोई दिक्कत नहीं। आईएएस अधिकारी की तैयारी के लिए ये सेशन रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डेड में इसको समझ लें। यूपीएससी की परीक्षा देनी है, उसमें ग्रुप ए की सबसे बड़ी जॉब आईएएस अधिकारी की होती है। तलाटी की एग्जाम बिल्कुल जरूरत है, तलाटी के लिए CCC की जरूरत है। लेकिन परेशान ना हो, कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनाने वाले लोग बहुत मार्केट में, कम से कम 300 से ज्यादा कंप्यूटर की दुकानें हैं यहाँ। दुकानें मतलब जो लोग इसकी तैयारी कराते हैं, CCC O लेवल, ये तो जरा सा काम है, फॉर्म डालेंगे, उनको 550 रुपए देंगे, वो अपना पूरा करके आपको दे देंगे, ठीक है। आगे मुझे बताइए, आगे क्वेश्चन किसी का है? सर बैंकिंग ऑपरेशन के बारे में बताइए। बैंक ऑपरेशन क्या जानना चाहते हैं? बैंक ऑपरेशन में 2 ही चीजें हैं। पहले जो बैंक ऑपरेशन था वो कॉमर्स के बिहाफ पर चलता था, मतलब दोज कैंडिडेट हु आर हैविंग अ ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, वो बच्चे रहते। अब लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आई, सॉफ्टवेयर आया, तो ऑपरेशन पूरा हो गया ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब है एनीबडी कैन प्रोवाइड द सर्विसेज इन बैंकिंग, कोई भी सर्विस दे सकता है। इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको 15 से लेकर 3 मंथ्स की, मतलब 90 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जाएगा आपका। सैलरी मिलेगी इसमें भाई,
ठीक है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप अपने जितने भी आपके वर्किंग प्रोफाइल रहेगा, पैसा निकालना, डालना, एफडी बनाना, एलआईसी करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है सर, एनसीईआरटी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? सारे मैंने बोला ना, एनसीईआरटी मतलब जीएस, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। रेलवे की एग्जाम कब आती है? आयुषी, ये आपका बहुत सटीक क्वेश्चन है। 2017 और 18 के बाद अब तक कोई वैकेंसी रेलवे ने डिक्लेयर नहीं की है, क्योंकि 17-18 के एग्जाम, सॉरी 17-18 के एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं हुए हैं। कुछ एग्जाम थे जो 19 में कंडक्ट हुए, कुछ एग्जाम 21 में कंडक्ट हुए, क्योंकि इनका जो वैकेंसी का लॉट होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो इसकी वैकेंसी का कोई मंथ फिक्स नहीं है। पर हाँ, सेंट्रल का एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा फॉर्म में होता है, इसीलिए हो सकता है कि इस साल के लास्ट तक कुछ दें। स्टार्ट करें, हम सेकंड ईयर में हैं, थर्ड सेमेस्टर में हैं। तो पायल, मैंने बताया कि आपको यूपीएससी करना है, एक बार मेरे पास आओ, मेरे मतलब मेरी टीम के पास आओ, आजाद सर से मिलो, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे यूपीएससी के बारे में। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछो बॉस, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। हेलो विद्यार्थी मित्रों, कोई पण प्रश्न होय तो हजू तमे चैट बॉक्स में लखी सको छो। सर सीडीएस के बारे में बताइए, कुछ ऐसे लिखा है। सीडीएस का पूछ रहे हैं, क्लास हम लोग नहीं कराते हैं, ये डिफेंस सर्विसेज के एग्जामिनेशन है, और ये जो एग्जाम है ये यूपीएससी के माध्यम से ही कंडक्ट होता है। जितनी भी इस परीक्षाएं हैं डिफेंस की, और डिफेंस में भी बड़े लेवल की परीक्षाएं हैं, वो सारा एसएससी यूपीएससी ही कंडक्ट करता है। ये है सीडीएस, यूपीएससी के थ्रू ही जाते हैं। इसका पेपर पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है कंपेयर टू इसके, इसका प्रिपरेशन एग्जामशाला नहीं कराती। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बैंकिंग की एग्जाम माटे क्लास नहीं? सर हाँ, अभी बिल्कुल लेटेस्ट चलेगा। जी सर, प्लीज आस्क। अभी सर लेटेस्ट एग्जाम कौन सी आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही। अब लेटेस्ट एग्जाम इसी साल आईबीपीएस पीओ क्लर्क पहला, जिसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट कैन अप्लाई, ग्रेजुएशन कंपलसरी है। उसके बाद एलआईसी की, यूडब्ल्यूआईसीएल, एनआईएसीएल और एनआईसीएल, 6 वैकेंसी इसकी आएंगे, लेकिन क्वालिफिकेशन सेम, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। लेकिन इसके बाद एसएससी में मल्टीटास्किंग स्टाफ और सीएचएसएल, ये 10th बेस 12th बेस की जॉब आएगी। कब? मार्च में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी आएगी। टीवाई रनिंग कैंडिडेट कैन अप्लाई, जो लास्ट ईयर वाला बच्चा है वो अप्लाई कर सकता है, और इस अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल सेकेंड ईयर तक पास चाहिए आपको। और ये जो वैकेंसी कब आएगी? मार्च 2022। इसके बाद कांस्टेबल, कौन सा कांस्टेबल? तो गुजरात कांस्टेबल, और 6 नंबर है तलाटी, और या फिर प्लस सीनियर क्लर्क। तो ये दोनों वैकेंसी जनवरी में आएंगी, क्योंकि इलेक्शन आ चुका है, सीएम साहब चेंज हो चुके हैं, तो वैकेंसी जरूर आएगी। ओके सर, थैंक यू। कोई लिंक हो तो बताइए सर, ऐसे लिखा है। अच्छा, लिंक मैंने अभी बताया ना आपको, sarkariresult.com है। देखो मैंने अभी आपको बताया, दिस इज sarkariresult.com। मैं एक लिंक अगर ऐसा है तो मैं टाइप कर देता हूं, www.examshala.india.com। लो, मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया। और सर स्टूडेंट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए कोई गूगल एप्लीकेशन या कोई जॉब पोर्टल है वो ऐसा, जो गवर्नमेंट का जॉब पोर्टल हो, वहां से वो अप्लाई कर सके? हाँ, गवर्नमेंट का भी जॉब पोर्टल है, लेकिन आप समझे इस चीज को, अगर आप यूपीएससी कर रहे होंगे तो उसका पोर्टल अलग है, बैंकिंग का पोर्टल अलग है, एसएससी का पोर्टल अलग है। ये आप यूआरएल भूल जाएंगे, जैसे ibps.co.in, sbi.co.in, sbi.in, sbicbo.in, ssc.co.in.gujarat.com। तो अब उस चीज में आप कंफ्यूज होंगे, इसीलिए ये सारे यूआरएल देखो यही मिल रहा है आपको, सारी, कोई भी वैकेंसी उठा लो। आप यूपीएससी टेक्निकल में जाना चाहते हैं, क्लिक किया, यहां पर नीचे की तरफ गए, ये फॉर्म अप्लाई का ऑप्शन आ गया,
पूरा वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है, कितने कितनी जॉब है, क्या है, कैसे नोटिफिकेशन को पढ़ना है, और हमने यहाँ क्लिक करके अप्लाई पे कर लिया। जब अप्लाई करेंगे देखो लिखा ना upsc.uppsc.up.nic.in, ये जो कोड आपको दिख रहा है, दिस कोड, ये वाला यूआरएल मिलेगा। लेकिन हमें इतना याद ही नहीं करना, जब हमें वहीं से एक चीज रिफ्लेक्ट करके भेज रही तो कोई दिक्कत नहीं है। यस, बैंक की क्लास 3rd ईयर में हो सकती है हर्ष, और 3rd ईयर में जॉब भी मिल सकती है। मैंने बताया अभी कुछ देर पहले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लेरिकल का एग्जाम जो है वो टीवाई के साथ दे सकते हो आप। तो भरिए फॉर्म, आएगा फॉर्म भर देना। हेलो सर जी, हाँ, अगर हमारा कोई स्टूडेंट आपके यहाँ आता है तो आप उसके लिए क्या सर्विस कर सकते हैं? मतलब उसका एप्लीकेशन और प्रिपरेशन क्या हो सकता है आपकी तरफ से? सबसे पहला फी में 10% डिस्काउंट, पहली चीज। ओके, एडमिशन लेते हैं तो, नहीं लेते हैं तब उसके बाद भी सर्विस मिलेगी। दूसरी, अगर एडमिशन लिया तो लाइफ टाइम कार्ड। तीसरा, एडमिशन नहीं भी लिया, कोई भी फॉर्म आएगा गवर्नमेंट का, अपने डॉक्यूमेंट लेकर आओगे, हम फॉर्म फिलिंग फ्री में करा देंगे, कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है। 4th नंबर, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, तीनों की प्रिपरेशन फ्री में। फ्री मतलब आपने एडमिशन लिया तो, अगर एडमिशन नहीं लिया और आपका प्री पास हो गया तो हम मेंस और इंटरव्यू फ्री में करा देंगे, एडमिशन नहीं लिया तब भी। ये सारी सुविधाएं जो हैं, इसके अलावा बुक्स हो गया, आपका टेस्ट हो गया, ऑनलाइन मॉक टेस्ट हो गया, प्रैक्टिस टेस्ट हो गए, हर महीने का करंट अफेयर पैकेट हो गया, ये सब को सब चीजें इनबिल्ड आ जाएंगी इसी प्रोग्राम में। ओके सर। कृतेश का दूसरा एक क्वेश्चन क्वेश्चन है, एसएससी क्लियर करने के बाद जॉब असाइन होने में कितना टाइम लगता है? देखो एकदम समझ लें, एसएससी का अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है बहुत पुअर रहा है, क्योंकि इसका एग्जाम अभी तक इन्फोसिस कराता था, एग्जाम ही डिले 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 होता था, तो एग्जाम डिले होता तो प्रॉब्लम हो जाती थी। इसी वजह से एग्जाम डिले ना हो, एग्जाम टाइम पर होता रहे, अब वो टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करेगी एसएससी का, और जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा तो 1-2 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब बच्चे पूछ रहे हैं कॉस्ट क्या होगी, देखो एकदम बता देता हूं, लिखकर बता देता हूं, नहीं तो तुम फिर बार बार पूछते रहोगे। एसएससी रेलवे इंश्योरेंस, अब इसका जो फीस है इस समय वो है 18,850, इस पे 10% आपको वेट मिल जाएगा, इसका भी 18,850। ये 4 कोर्स करते हो तो 20,850, अगर डिस्काउंट कर लेंगे तो सब पे 2-2 हजार का डिस्काउंट मान के चलिए, ठीक है, मतलब ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और 18 हो जाएगा, 18,850 के लमसम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इस फीस में हम लाइफ टाइम पढ़ाएंगे, 4 कोर्स कराएंगे, बैंक, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस, और हर साल पूरी प्रिपरेशन करा के देंगे। ये हो गया बैंकिंग का 1 डे एग्जाम का। अब आप कहेंगे जीपीएससी 1, 2, 3 तीनों करना है, तो फीस है हमारे यहाँ 29,500 रुपीज लाइफ टाइम, गुजरात में कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता। यूपीएससी की करना चाहेंगे तो 85,000, इसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी मिल जाएगी आपको, और लाइफ टाइम कार्ड मिलेगा। ये फीस स्ट्रक्चर होगा। न्यू बैच कब से स्टार्ट होते हैं? तो हर मंडे से नए बैच होते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ टाइमिंग अलग है। एक टाइमिंग है सुबह 6:30 से 8, उसके बाद 8 से 10। बहुत सारे बैच हैं जिनमें सीट ही नहीं होंगे आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बैच प्राइम बैच होते हैं वो भर गए। अगर आप लेना चाहेंगे तो एक बार आइएगा, ये सारे बैच मिल जाएंगे आपको, और शाम में 6 से 7:30 ये बैच है। सुबह 6:30 से 8, 8 से 10, 10:30 से 12:30, 1 से 3, 4 से 6, और शाम में 6 से 7:30 ये।
अभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर, वो तो आप सर चलिए। सीडीएस क्लासेस के लिए फीस के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैंने पहले ही बताया कि हम लोग कराते नहीं है। अगर इनकी सर्विसेज के लिए आपको जाना है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा या पुणे जाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट उतने चाहिए जब पे हम पढ़ा सकें। तो वहां जाएंगे तो आपको पता चल जाए। ठीक है, चलिए। तो अब आपका हृदय से धन्यवाद, समय हो चुका है, फिर मुलाकात करेंगे आपसे। ओके, तो विद्यार्थी मित्रों, આજે આપણને હરેન્દ્રસિંહ તોમર સરે આપણને ખૂબ જ સરસ મજાની માહિતી આપી છે. સર, મેં આપનો ખૂબ જ હૃદયપૂર્વક હાર્દિક આભાર કરું છું તમારો. થેન્ક યુ વેરી મચ ડૉક્ટર માર્ટિના મેડમ. થેન્ક યુ વેરી મચ મારી કમિટીના બધા સભ્યો અને મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો જેમણે શાંતિથી તમને સાંભળે છે, એ સૌનો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ. ઓકે સર. Yes, thank you, Manesh sir. હાજી ભાવેશ સર, થેન્ક યુ. તો સર, આપણે અહીં વેબિનારને સમાપ્ત કરીએ છીએ. ઓકે. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ. ઓકે સર.